Good afternoon children, myself Vaibhav Kulkarni, TGT Maths from Jawahar Navodaya Vidyalaya Osmanabad. I welcome you all in my channel Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. You might have seen and enjoyed and learned my videos of class 9th standard and 10th standard. Even we have also taken up a basic foundation course for the students from 6th to 10th standard, that is basic maths for all. So I think the videos you might have enjoyed it and you are using it also for self learning purpose. So kindly use the video, share with all, comment in the comment box and subscribe it so that you will always get my updated videos. Thank you. Let us take up the next problems of the topic arithmetic progression, exercise 5.2. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? See, read the question once again if you don't understand it for the first time. Two APs have the same common difference. That means what? Common difference is same. First term is not same. Common difference is same. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? See, let me say that the first AP is A plus D, A plus 2D, so on, so forth. Sir, what about the second AP? The second AP is A dash plus D, A dash plus 2D, so on so forth. So the first AP starts with A but common difference is same. Second AP starts with A dash, common difference is D. Now what he says is the difference between the 100th term is 1000. That means what? See here, A 100 minus A dash 100 is equal to 100. That means the 100th term of the first AP and the 100th term of the second AP, they differ by 100. पहले AP A plus D, A plus 2D से शुरू हो रहा है. A dash दूसरा AP A dash plus D, A dash plus 2D से शुरू हो रहा है. पहले AP का और दूसरे AP का फर्क है 100. तो आपसे पूछा गया है कि पहले 1000th टर्म का फर्क क्या है. पहले तो एक काम करेंगे हम, A 100 और A dash 100 है, तो एक काम करेंगे, A 100 का मतलब होता है A plus 99D, A plus 99D. A dash 100 का मतलब होता है A dash plus 99D is equal to 100. A 100 means A plus 99D, A dash 100 means A dash plus 99D. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो A plus 99D माइनस ऑफ प्लस होगा बच्चों माइनस, और माइनस ऑफ प्लस होगा माइनस, इज इक्वल टू 100. ओके, सो प्लस 99D माइनस 99D कैंसल, सो A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100. A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100. तो ये दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम व्हाट इज गिवन. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आई शुड फाइंड आउट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म. That means what? A 1000th term of the first AP will be A 1000 minus 1000th term of the second AP will be A dash 1000. What is the value of this? This is asked to you. आपको पूछा है कि A 100 में से A dash 1000 अगर निकालेंगे तो कितना होगा. सिंपल है बच्चों, A 100 में से A निकालना है तो A 1000 का मतलब होता है A plus 999D और A dash 1000 का मतलब होता है A dash plus 999
डी। तो इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो प्लस ऑफ प्लस तो प्लस होगा, प्लस 999 डी, माइनस ऑफ प्लस होगा माइनस ए डैश, प्लस ऑफ माइनस ऑफ प्लस होगा माइनस 999 डी, प्लस 999 डी माइनस 999 डी कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू होगी ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। और बच्चों ए माइनस ए डैश की वैल्यू है 100, यानी आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिफरेंस ऑफ द 1000th टर्म विल आल्सो बी इक्वल टू 100। If the difference of the, what is the question? What is the question? Two APs have the same common difference. The difference of the 100th term is 100. What will be the difference of the 1000th term? Difference of the 1000th term also will be 100 only. Difference of the, what is it, 1 lakh term also will be same. So difference is not going to change. So this is how you have to solve the problem. Read the question carefully. Note down the key points. Once you note down the key points, then what you should do is you have to use the regular correct formula, get the solution. Key points बहुत जरूरी है मैथ्स के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो कुछ बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 3 डिजिट नंबर तो बहुत सारे हैं। नहीं, 3 डिजिट नंबर बहुत सारे नहीं है। 3 डिजिट नंबर होता है 100, इट स्टार्ट्स विथ 100। 100 7 से डिवाइड नहीं होता है। आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 बताया था बच्चों, तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे बताइए, आप में से कोई बताएगा? चलो बताओ, कौन सा है सबसे पहली संख्या जो 7 से डिवाइड होगा? क्या कहा? 105। हाँ सही है। तो पहली संख्या क्या है? 105। फिर दूसरी संख्या क्या होगी? 112, 112। तीसरी संख्या क्या होगी? 119। चौथी संख्या क्या होगी? सर 126। अरे मेरे भाई कितना लिखते रहोगे? हाउ मच यू कैन राइट? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर। और लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। हमको चाहिए लास्ट 3 डिजिट नंबर भी चाहिए, प्लस 7 से डिवाइड होने वाला भी चाहिए, तो वो है 994। सर 995 आपने क्यों नहीं लिया? 7 से डिवाइड नहीं होता है। 996 आपने क्यों नहीं लिया? बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो ये कितने ऐसे संख्या है जो 7 से डिवाइड होता है, ये आपको पूछा गया है। दैट मीन्स व्हाट? an का फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है बच्चों। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो यूज करना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर फर्स्ट टर्म आप जानते हो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 105 है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? डी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का हमेशा फॉर्मूला लिखने का भूलो मत। a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 7। तो कॉमन डिफरेंस इज 7। आप पूछ सकते हो मुझे, सर हमको तो पता है कॉमन डिफरेंस 7 है। बच्चों आपको पता है, ये हमें भी पता है, मगर इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट द मेथड इज इंपॉर्टेंट। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, इस फॉर्मूले के अंदर आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया, लास्ट टर्म भी आप जानते हो। व्हाट इज द लास्ट टर्म हियर? 994। लास्ट टर्म भी आप जानते हो, तो उसको भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। तो क्या ये आपको चाहिए? क्या n चाहिए? तो हियर व्हाट यूल डू, 994 इज इक्वल टू, a का मतलब होता है 105 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 7 है। तो आप इसको यहां ट्रांसपोज कर दीजिए आप। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो इसको अगर आप माइनस करते हो बच्चों, तो 14 माइनस 5 होगा 9। 14 माइनस 5 होगा 9, और यहां कितना बचता है? 8 बचेगा। तो ये कितना होगा? 8। ओके, और यहां 9 माइनस 1 कितना होगा? 8 होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज इट? 14 माइनस 5 इज 9, 8 माइनस 0 इज 8, 9 माइनस 1 इज 8, तो डिवाइडेड बाय 7 आप कीजिए, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको जब आप करोगे तो कितना होगा आप देखिए, 7 1 जा 7 होगा बच्चों, तो बचेगा कितना 118 होगा, 7 2 जा 14 होगा, कैरी 4 तो कितना होगा 49, 7 7 जा 49, तो व्हाट यू विल गेट इज 127। ये -1 इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, +1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू 128। यानी व्हाट डज इट मीन? इस तरह से अगर ये लिस्ट बढ़ती चली गई तो 3 डिजिट नंबर टोटल 128 है जो 7 से डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स देर आर 7 2 डिजिट नंबर दैट इज 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। बिल्कुल इसी तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या था, डिविजिबल बाय 7 है, वहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 4 है, तो ये आपको पूछा है। तो ये कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी इट। नाउ सेम मेथड वी हैव टू यूज, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। एग्जाम में काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 डिजिट नंबर 4, व्हाट इज इट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सो लेट अस सी यार, देखिए 10 से शुरू करें तो 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है बच्चों, 11 भी नहीं होता है, तो कौन सा होगा, 12 होता है सर। हाँ 12 होता है सर, 16 होता है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या होता है, 20 इज डिविजिबल सर, वंडरफुल। बट कैन यू एक्सपेक्ट मी टू कीप ऑन राइटिंग अप टू 240 250? नो, not required. What you do is, what is the last number that divides, that is divisible by 4? It is equal to 248. So dash 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 up to 248 you can do. Next, write the formula. Always that is the key thing that you must and should do. Write the formula. What does formula says? An is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. A plus n minus 1 multiplied by d. In this formula, let us see an. We know what is an. An is the last term and that is equal to 248. Fine. Sir, first term is 12. Sir, common difference. Sir, we know it, sir. It is very simple. What is it? 4. You know it, but even then you should write it here. 16 minus 12 is equal to how much? 4. I know that you know it, but even then you should write it. So nth term is 248, first term is 12, n minus 1 multiplied by 4. So this becomes 248 minus 12 is equal to n minus 1 multiplied by 4. So 8 minus 2 is 6. Then 4 minus 1 is 3 and 2 as it is. I repeat, 8 minus 2 is 6, 4 minus 1 is 3, 2 as it is. Into 4 is there, so I'll write it as divided by 4 into n minus 1. So if you divide it further, this becomes 4 5s are 20, carry 3, 4 9s are 36 is equal to n minus 1. Now if I transpose it to the left side, this becomes 59 plus 1 is equal to n. So n is equal to 60. So my dear children, what does it mean? It means that if this AP continues like this,
the multiples of 4 in this AP is 60. So I hope you are able to understand my point and my this one. समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? हाँ या ना में जवाब दो. हाँ कहा आपने? सुना नहीं मैं. Yes, fine. Next question is, for what value of n, nth terms of 2AP 63, 65, 67, 3, 10, 17 इक्वल. सर इसका मतलब क्या होता है? पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो. एक बार क्वेश्चन का मतलब समझोगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. यानी मेरे पास दो एपी है. एक एपी शुरुआत होती है 63, 65, 67 से, यानी शुरुआत ही 63 से हो रहा है. दूसरा टर्म आएगा 65, तीसरा टर्म आएगा 67. दूसरा एपी मेरे पास है जिसकी शुरुआत होती है 3 से, 10 से, 17 से. और हमको बताना है कि ये दोनों एपी कब इक्वल होंगे. आप बोलोगे सर कैसे इक्वल हो सकता है सर, ये तो 63 से शुरू हो रहा है. मगर देखो मेरे भाई, इसका डिफरेंस है केवल 2 और इसका डिफरेंस कितना है? 7 का डिफरेंस है. इसीलिए एक ऐसा मकाम आएगा जहां पर दोनों एपी इक्वल होंगे. तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं. चलो हम पहले एपी की बात करते हैं. पहले एपी को हम लिखेंगे यहां पर 63, 65, 67 डैश डैश डैश. तो इस एपी के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सही है मेरी बात? सिंपल है सर, हम भी जानते हैं. तो ये होगा an इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 63, n माइनस 1. कॉमन डिफरेंस कितना देख लो आप यहां पर, 65 माइनस 63, तो कितना होगा 2. मैं जानता हूं आप नाराज होगे मुझसे. आप बोलोगे सर आपने तो कहा था हर बार फॉर्मूला लिखिए आप. बच्चों थोड़ा एक बार आप भी तो लिख लो ना यार. हर बार मुझे लिखना है क्या? नहीं है ना? आप लिख लोगे ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो an इज इक्वल टू 63, 2 इंटू n होगा बच्चों 2n, फिर माइनस कितना होगा 2, यानी an होगा 63 माइनस 2, 63 माइनस 2 होगा बच्चों 61 प्लस 2n. क्या होगा? 61 प्लस 2n. ये किस एपी की बात कर रहा हूं मैं? पहले वाले एपी की बात कर रहा हूं. सर दूसरे वाला एपी ले लेते हैं उसको भी. 3, 10, 17 डैश डैश डैश. अब इस एपी को हम कहेंगे an डैश. क्या कहेंगे? an डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश कहेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम नहीं है. नंबर ऑफ टर्म्स केवल एक होने वाले हैं, इसलिए n मैंने सेम रखा. इसकी शुरुआत 3 से हो रही है तो इसकी शुरुआत 63 से हो रही है. द फर्स्ट टर्म इज 3 here, the first term is 63 here. So we can't say that the first terms are equal. I have taken a for this, a dash for this. Fine and fantastic. Common difference is 2 here, common difference is 7 here. So it cannot be, this cannot be same. So I have taken d dash here. Sir, what about number of terms? That's what we are searching for. वही तो हम ढूंढ रहे हैं, n की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं. तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो an dash is equal to a is how much? 3. n minus 1 I have to search for. d dash common difference अब देखिए 10 minus 3 how much it is? 7. आप बोलोगे सर आप फॉर्मूला लिखो ना. बेटा तुम लिखो ना यार, थोड़ा लिख दीजिए आप. a2 डैश आप क्या लिखोगे वहां पर? d डैश इज इक्वल टू a2 डैश माइनस a1 डैश. लिख लोगे? हाँ, फाइन. an डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू n इज 7n माइनस 7 इंटू 1 इज हाउ मच? -7. तो
ए एन डैश इज इक्वल टू 3 माइनस 7 होगा बच्चों -4, 3 माइनस 7 होगा -4 प्लस होगा 7n, प्लस होगा 7n। अब ए एन की वैल्यू ये है, ए एन डैश की वैल्यू ये है। आप बोलोगे सर nobody asked you to find out what is an and what is an dash. Yes, if you are asking me the same question, I agree. मैं इस बात को मानता हूं कि मुझे किसी ने यह नहीं पूछा है कि an क्या होगा, an dash क्या होगा, तो सर फिर क्यों ढूंढा है? Why did you find it out sir when it is not asked? Wait for a minute, let us read the question again. For what value of n are the n terms of 2 APs equal? Yes, it is asked. सर कहाँ पर आस्क किया है? an इज इक्वल टू an डैश कब होगा, यानी ये दोनों इक्वल कब होंगे, यानी 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n कब होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसको कैसे करोगे बच्चों? 61 इस 4 को ट्रांसपोज दिस 4 टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, -4 इफ यू ट्रांसपोज इट टू लेफ्ट साइड इट विल बिकम +4, 7n if I transpose this 2n towards the right side then it will become 2n. That means what? 65 is equal to 5n and 65 divided by 5 is equal to n. That means what children? n is equal to 13. Sir, what does it mean? What does it mean? It means that, इसका मतलब होता है, it means that if this AP continues in the same way, whatever 13th term you are getting here, the same 13th term will be there also. That means this AP and this AP will become, the 13th term will be same. Afterwards 14th term may not be same but 13th term will become same. इसका मतलब ये होता है कि यह AP इसी तरह से अगर कंटिन्यू रहा और यह AP भी इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो इन दोनों AP का 13वां पद 13th टर्म विल बी सेम। सर 14वां पद नहीं सेम होगा, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग अलग है। तो बच्चों मैं आपसे आपको शायद आश्चर्य होता होगा सर ये 13वां पद कैसे सेम होता है, तो ये होमवर्क मैं क्यों ना आप ही को दे दूं। आप इस AP को हाथ से लिखिए, 13 पद तक आप लिख लो, इस AP का भी 13 पद तक आप लिख लीजिए और लिखने के बाद आप खुद काउंट कर सकते हो, इतना तो आसानी से कर सकते हो। इसी तरह से आप सारे संख्या लिख सकते हो, गिन के देख सकते हो कि 60 है कि नहीं। तो इसी तरह से आप यहाँ इसका भी देख सकते हो कि 128 है कि नहीं। सर क्या ज़रूरत है, चेक करना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप you can solve any problem of nth term of an arithmetic progression in a very simple manner। तो उम्मीद है कि इतना सिस्टमैटिकली और नीटली जो आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन किया है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो कीप ऑन सॉल्विंग as many problems as you can of your own। Thank you children, have a nice day।